क्वेश्चन नंबर 51. No, sir. No, sir. सोजुअल तुम एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर 51. Yes. हाँ, क्वेश्चन नंबर 51. We have one common factor. Okay. Therefore, we'll use one factor as alpha, and we will substitute that for x. And Like then this. Like this alpha from that square. we'll find the value of a. Okay, so have a common factor, yani one root is common. Let's say that root is alpha. Satisfy, matlab substitute and satisfy. And alpha square minus 11 alpha plus a is equal to 0. Also 11 is alpha square minus 14 alpha plus 2a is also 0. ठीक है. So Joel, next. Then we will find the values of alpha in terms of a. Yes, sir. हाँ, ये आई थिंक यार कम से कम 7-8 क्वेश्चंस करवाए थे सेम पैटर्न के ऊपर कि अल्फा पुट करते हो, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट, अल्फा की वैल्यू फाइंड, वापस से सब्स्टिट्यूट. सो अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, 14 अल्फा माइनस 11 अल्फा 3 अल्फा, a माइनस 2a माइनस a, राइट साइड प्लस a, अल्फा इज इक्वल टू a by 3. now put this alpha in any one of these equations. तो ये है अभी a square upon 9 minus 11a upon 3 plus का a is equal to 0 multiply with 9, so this will be a square minus 33a और plus का 9a is equal to 0. ठीक है, तो ये हो गया अभी a square minus कितना होता है 33 minus 9 24. a is equal to 0, a common, a minus 24 is equal to 0, either a is equal to 0 or a is equal to 24 option है. ठीक है. Now question number 52. If both roots of the equation are real and less than 3. ठीक है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो. This equation having real roots and both roots are less than 3. Coefficient of x square है positive, both roots should be less than 3. Distinct ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं. So graph will be like this or this. प्रसाद क्या conditions है बोलो. सर पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे. That should be greater than or equal to 0. Second condition. f of 3 must be greater than 0. Vertex should be on the left side of 3 and f of 3 should be greater than 0. greater than 0. ठीक है, तो d यानी b square minus 4ac, b square यानी 4a square minus का 4 times 1 और c, a square plus a minus 3, 4a square cancel, remaining है 4a plus 12 and that should be this, यानी a greater than or equal to 3 minus 3 minus b upon 2a, so b up minus b upon 2a, that should be less than 3, 2 cancel यानी a less than 3. Now f of 3 यानी x is equal to, put करो यहाँ पे 3, so this will be 9. 4a plus 12 greater than 0 आएगा ना. क्या बोल रहे हो. minus 4a plus 12 greater than 0, d is greater than 0. अच्छा हाँ ओके minus 4a plus 12 करेक्ट. ठीक है, यानी 4a less than equal to 12, a less than equal to 3. करेक्ट है. f of 3 and x is equal to 3. 9 minus का 6a plus a square minus a minus 3, that should be greater than 0. So a square minus का 7a, 9 minus 3 is plus 6 greater than 0. Factors a minus 1, a minus 6. Critical point 1, 6 plus minus plus positive portion. अभी this और this इन तीनों का intersection. So final answer should be a belongs to minus infinity to 1. ये इसका फाइनल आंसर. माइनस इन्फिनिटी टू 1 आर रियल देन a लेस देन 2. ठीक है, तो बोल सकते हैं यार, क्योंकि देखो 2 to 3 में तो पॉसिबल नहीं है, 3 to 4 में पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर देन 4 पॉसिबल नहीं है. माइनस इन्फिनिटी टू 1 ये 2 से कम ही होता है,
तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में डाउट है। The number of integral values of m for which the roots of the equation, this equation है x square minus का 2mx plus m square minus 1 is equal to 0, इसके roots should lies between -2 and 4. Again coefficient of x square है यहाँ पे positive, so graph opening upward, distinct जैसा तो कुछ इसमें है नहीं, यानी both roots can be same also, so graph will be like this. First condition minus b upon 2a greater than -2 less than 4. second condition d greater than or equal to 0. 0 और अभी इतना sufficient है क्या? इतना sufficient तो नहीं है यार अभी। f of -2 greater than f of -2 and f of and f of 4. f of -2 greater than 0 and f of 4 साथ greater में than f of 4 is also greater than 0. 0। अच्छा, ये सब करने से पहले आपको एक पॉइंट भी बोला था, एक बार इसके रूट्स चेक करके देखना चाहिए ना, कई बार इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दिख रहा है यार, ये है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x minus 1 is equal to 1, यानी रूट्स विल बी लाइक दिस, x minus 1 is equal to plus minus 1, x is equal to 1 plus m, और x is equal to minus 1 minus m. बेसिकली वन रूट है m plus 1 and the root is minus 1. ये कंफर्म है कि m plus 1 should be greater than m minus 1. 1। तो ये रूट है m plus 1 and this root है m minus 1, so smaller root will be greater than, minus and ये जो larger root है that should be less than 4. m should be less than 3 and m should be greater than minus minus 1. -1। तो इसका बेनिफिट क्या है? ये सारे कंडीशंस आपको अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगा। तो फाइनल आंसर है दिस, m belongs to -1 to 3। अभी -1 to 3 इसमें जो है क्या बोलते हैं इसको, इक्वलिटी वगैरह तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन 0, है 1, 2. नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, तो इसमें कितने इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m आ रहे हैं बोलो? 3. 0 1 2 ऑप्शन सी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation this is equal to 0 such that unity lies between the roots then the set of values of p, यार ये तो बताया था आपको, काफी सिंपल है। p lies between the roots, सपोज करो ग्राफ है ओपनिंग अपवर्ड, only and sufficient condition is f of 1 p less than less 0. than 0. ये तभी वैलिड है जब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है पॉजिटिव। सपोज करो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है नेगेटिव, देन ओनली एंड सफिशिएंट कंडीशन इज f of p greater than 0. Greater than 0. अब इसको देख के बताओ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, a पॉजिटिव d नेगेटिव, दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव। सो कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, जस्ट f of 1 लेस देन 0. 0। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, यार देखो सब तुम्हें कितना प्यार से और कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, 10 बार तुम्हें बोलते भी कि कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। अब इसके बाद नहीं समझ में आता है तो बहुत मुश्किल है यार, है ना। मतलब आपको बोलना चाहिए, नहीं बोलोगे तो फिर क्लियर ही नहीं होगा कि क्या डाउट है, किसको डाउट है और कैसे फिर उसको सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब ये जो बाइनोमियल वगैरह देखो, ये मैं तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम के हर पेज पे मैं बोलता हूँ कि थोड़ा हो सकता है किसी को ये डिफिकल्ट लग रहा हो, क्योंकि लगता है कुछ लोगों को डिफिकल्ट। उसके बाद मैं ये लाइन भी ऐड करता हूँ कि कोई डाउट है तो बोलो, अभी मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो बोलना चाहिए आपको। अभी ऐसा तो कभी नहीं होगा कि तुम 3-4 डेज तक बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, सडनली लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो सब समझ में आ जाएगा, ऐसे तो नहीं होता है। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं भाई। ये पेज नंबर है, जैसे कौन सा पेज नंबर 52 है, इस पेज नंबर 52 पे पेज नंबर 1, 2 और 3 के जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो भी यूज हो रहे हैं। यस और नो? Yes. Yes, sir. हाँ, अभी फिर भी डाउट आता है तो ये है कि पूछ लो, लेकिन पूछो तो सही। नहीं, और लिटरली इससे इजी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा तुम्हें, ये तो तुम ट्राई कर लेना अपने आप से, इससे इजी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ट्राई करता हूं मैं कि रेदर देन जो फॉर्मल लैंग्वेज है या जो बुक्स में गिवन है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने की जगह
जो एक्सपीरियंस से आता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने का, ठीक है, और वही बेस्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 देन दिस इज इक्वल टू। अब ये भी इजी क्वेश्चन है, एलसीएम क्या आएगा इसका, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और न्यूमरेटर में आने वाले हैं 3 3 के पेयर्स, क्या Yes, sir. 3 Minus. 3 के पेयर्स, ठीक है। सो 4 डिग्री इक्वेशन है, 4 रूट्स 1 1 के पेयर, 2 2 के पेयर, 3 3 के पेयर, 4 4 के पेयर। ये होता है रिलेटेड 1 1 के पेयर से, ये होता है रिलेटेड 2 2 के पेयर से, ये होता है रिलेटेड 3 3 के पेयर से, और ये रिलेटेड होता है 4 के पेयर से, यानी कि मल्टीप्लिकेशन से। साइन स्टार्ट होता है माइनस प्लस माइनस प्लस, सो डिनोमिनेटर इज प्लस 10 अपॉन 1. न्यूमरेटर 3 3 के पेयर्स माइनस और प्लस, तो Minus. न्यूमरेटर इज Minus. -4 अच्छा सॉरी 1 1 पेयर, 2 2 पेयर, फिर 3 3 पेयर, हाँ, तो -4 अपॉन 1, सो फाइनल आंसर इज -2 By 5. अपॉन 5। तो मुझे तो नहीं लगता है अभी तक कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट था इसमें, ऐसा कोई स्पेशल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था क्या बोलो? तो कुछ भी नहीं करते, जस्ट 1 आवर के अंदर ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो भी 20 मार्क्स आ गए। क्वेश्चन नंबर, अभी तो और भी सिंपल क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 56, लेट p of x be the cubic polynomial this, suppose the 3 zeros का मतलब होता है रूट्स जो कि इक्वल टू 0 करने पर आते हैं, of px form an arithmetic progression then find out the value of k। ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? Yes, sir. इक्वेशन है दिस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0, रूट्स है अल्फा। एक काम करते हैं, समेशन गिवन है ना हम लोगों को, और Sir, अरिथमेटिक alpha प्रोग्रेशन, हाँ ये कंसीडर करो, a Yes. a माइनस d और A plus D. Plus D. a प्लस d, ठीक है। दिस रिलेटेड होता है समेशन से, समेशन इज 3a इज इक्वल टू माइनस दिस अपॉन दिस, 4 by यानी 4 7. अपॉन 4 by 7, a इज इक्वल टू 4 अपॉन 21. 21। आगे क्वेश्चन क्या है, देन द वैल्यू ऑफ k। अभी दिस एंड दिस रिलेटेड होता है विथ Multiplication. Multiplication. मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस माइनस, बीच में x भी आता है यार, x किससे रिलेटेड होता है, समेशन ऑफ 2 2 2 पेयर्स, 2 turn. दिस पेयर a स्क्वायर माइनस 8. दिस पेयर a स्क्वायर प्लस 80. PD. एंड दिस पेयर A square minus D square. A square minus D square. हाँ, और ये हो गया अभी 3a स्क्वायर, Minus D ये square. कैंसिल, माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 0, क्योंकि है नहीं ना x वहां पे, तो दिस इक्वेशन एंड फाइनली 3 3 के पेयर्स, यानी सबका मल्टीप्लिकेशन विल बी दिस a into a स्क्वायर माइनस D D square. square. इज इक्वल टू K by 7. माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस k अपॉन, Minus K by 7. 7. अभी a और d ये सब फाइंड करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये है a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर और साथ में 2a स्क्वायर, और समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? Yes. हाँ, तो दिस है a into a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 2a स्क्वायर। सो बेसिकली a की वैल्यू से ही हो गया सारा काम, आपको सेपरेटली d फाइंड नहीं करना है, ठीक है, बस और क्या, इसमें को इजीली वैल्यू ऑफ k फाइंड, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द इक्वेशन whose roots are sec square alpha and Cos x square alpha. Cosec. cosec square alpha, ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? सर पहले ऐड कर दो दोनों को. हाँ, मतलब स्ट्रक्चर तो यही होता है, और multi- एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0. 0. ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, Summation of root और multiplication of root सेम आती है. इस केस में समेशन ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स सेम ही आता है, ये तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट और सेकंड पेज पे देखा होगा ये क्वेश्चन, डेफिनेटली देखो। अच्छा नहीं है, नहीं ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए, है ना? नहीं पता है तो भी कर सकते हो, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर अल्फा
प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये सेम ही आता है क्या? 1/sin square cos दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, दिस इज 1 प्लस cot cot स्क्वायर अल्फा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 into 1 1, दिस इज आल्सो 1, दिस tan स्क्वायर अल्फा एंड दिस cot square. cot स्क्वायर अल्फा, दिस sec स्क्वायर अल्फा एंड दिस cosec स्क्वायर अल्फा, यानी sec स्क्वायर अल्फा cosec स्क्वायर अल्फा, इनका समेशन और मल्टीप्लिकेशन Same. सेम. Same. So this p, this is also P. p. तो इसका स्ट्रक्चर फाइनली ये आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. ऑप्शन ए. सर बी भी आना चाहिए. हाँ B भी. सुनो सुनो यार, ऐसे थोड़ी होगा यार, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा ना उसकी रेंज किस इंटरवल में आ रही है. हाँ. भाई थोड़ा तो अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग इतना इजी क्वेश्चन करना चाहिए क्या हम लोगों को? भाई तुम जैसे ऑप्शन बी बोल रहे हो तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, इसको तुम 3 अज्यूम कर रहे हो. अरे बोलो. यस सर. हाँ, वो चेक करना पड़ेगा कि 3 पॉसिबल भी है या नहीं है. ओके, तो ये बताया था आपको, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है? A plus. ए प्लस बी होल स्क्वायर. हाँ, तो अभी था दिस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, ए एंड बी बोथ आर 1. दिस एक्सप्रेशन का मिनिमम कितना पॉसिबल वैल्यू है? 4. सो वी कैन नॉट यूज बी, मतलब 3. समझ गए? Yes. तो भाई यार ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ऑप्शन रॉन्ग है या फिर इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. जब तुम्हें दिख रहा था कि यार बी सी डी तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एक है माइनस एक है प्लस. ऑप्शन ए भी पॉसिबल है ऐसे तो, क्योंकि ऑप्शन बी में भी ऐसा ही कुछ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2. 1 अपॉन 2. तो ऑप्शन ए सी और सॉरी ए बी सी, ए बी और सी, हाँ ए बी सी, वैसे तीनों पॉसिबल है लेकिन नहीं है पॉसिबल एक्चुअल में, क्योंकि सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, दिस एक्सप्रेशन मिनिमम कितना होता है? 4. हाँ, तो बी यूज नहीं कर सकते, ए यूज नहीं कर सकते, एक ही पॉसिबिलिटी है ऑप्शन सी. ये इसका आंसर आएगा. क्लासिक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था. अब यार देखो, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार आपको, है ना इसमें, मतलब यही है कि थोड़ा दिमाग लगाओ आप, है ना. ऐसे नहीं होता कि बस रैंडम देखा बी सी ए, ऐसे नहीं होता है. मैथ से दिमाग तो लगाना पड़ेगा. देखो थोड़ा हर स्टेप में ध्यान रखना पड़ता है आपको कि कुछ आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन 58. एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, देन ये क्वेश्चन हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस भी किया था क्लास में, और ये एक्सप्रेशन इसका एक फैक्टर है, बताया था आपको. डिवाइड करो, फैक्टर है तो फाइनली रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0. 0. स्टार्ट करते हैं डिवीजन से. तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 एंड दिस एक्सप्रेशन इज दिस ax क्यूब प्लस bx प्लस c, starting with ax, so this is ax cube plus ap x square plus ax, साइन चेंज कैंसिल, और अभी है माइनस ए पी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस सी, नाउ डिवाइडेड बाई माइनस AP. AB. ए पी. तो अभी है एक्सप्रेशन है दिस माइनस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर एक्स माइनस A. ए पी, अगेन साइन चेंज प्लस प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस, ये एक्सप्रेशन कैंसिल, और ये है दिस बी माइनस ए plus A. प्लस ए पी स्क्वायर एक्स और प्लस सी प्लस ए पी, एंड बिकॉज ऑफ फैक्टर रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0. 0. ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस किस फॉर्म में. सो ऑप्शंस है ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ऑप्शंस है ए बी सी के फॉर्म में. सो बेसिकली वी हैव टू एलिमिनेट P. p, c plus ap 0, p is equal to minus c upon a, this is also 0, ये p यहाँ पे पुट करते हैं. तो ये हो गया b माइनस a प्लस ए पी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर अपॉन, A. A square. ये कैंसिल हो गया यहाँ पे ना. तो ये है अभी मल्टीप्लाई विद a, सो दिस विल बी ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0. बस अभी ऑप्शन मैच करो. सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था हम लोगों ने एक दिन पहले.
आप लोगों ने से ही किसी ने पूछा था, सेम क्वेश्चन था। a square minus c square is equal to ab. AB. Option C. Next question number 59. The set of values of a for which the inequality this satisfied for all x in the interval 1, 2, 3. 1 to 3 और 1 और 3 पे क्लोज ब्रैकेट है ना, इक्वलिटी देखते हैं। तो ये है x minus 3a into x minus a minus 3 should be less than 0. 0. Critical point 3a. Critical point 3 minus a plus 3. So critical point are 3a and a plus 3. अभी डाउट ये है कि which one should be on the left side, a plus 3 और 3, वो कैसे डिसाइड करोगे? Which one should be on the left side, 3a और a plus 3? अच्छा 3a और a plus 3, 3a greater than a plus 3 कहाँ वैलिड है? 2a greater than 3a greater than 3.2. यानी 1.5 से अबव, 1.5 से अबव 3a ग्रेटर होता है a plus 3 से। सर इसमें x की वैल्यू 1 2 3 सब्स्टिट्यूट किए के उनका इंटरसेक्शन किया की वैल्यू 1 2 3 इंटरवल में उन्होंने बोला है ना 1 और 3 के बीच में होगा। हाँ 1 और 3 के बीच में होगा, देन we can substitute 1 2 3 in place of x and जो भी वैल्यू आएगा उसका इंटरसेक्शन। नहीं है तो 1 2 3 में, सॉरी 1 2 3 में केवल 1 2 3 नहीं होता ना, क्योंकि इसने बोला है कहीं पे इंटीजर्स है। नो इसका सर, इंटीजर वर्ड यूज किया है क्या? तो इंटीजर वर्ड तो यूज नहीं किया है यहाँ पे। ओके बाकी ये है फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल 1 2 3। बाकी आप देखो ये क्वेश्चन ये कुछ ऐसे ही आ रहा होगा एक्चुअल में। क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी तो है नहीं यहाँ पे, तो होलो सर्कल और नेगेटिव पोर्शन, और ये इंटरवल गिवन है आपको 1 2 3। तो ऐसे केसेस में जनरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके रूट्स क्या होने चाहिए? 1 एंड 3। मुझे लगता है वो हो नहीं पाएगा अभी यहाँ पे 1 एंड 3। चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस ax माइनस 3x प्लस 3a इंटू plus a plus 3 and this equation having roots 1 and 3। लेकिन 1 and 3 बोल नहीं सकते यार हम लोग, है ना, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है वो। तो 1 and 3 के अकॉर्डिंग समेशन इज दिस माइनस 3a या माइनस b अपॉन a, सो 3a plus 3 अपॉन 1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 4। अच्छा a की वैल्यू से इंटरवल है पूरा, सही ठीक है। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको सही से बोले? ये क्वेश्चन एक्चुअली इस तरीके से हो गया, पता है, थोड़ा केयरफुली सुनना है ना। 3a और a plus 3, अभी ये तो डिसाइड है नहीं हम लोगों को कि इसके रूट्स क्या है ना, 3a और a plus 3 में विच इज ग्रेटर, वो डिपेंड करता है एक्चुअल में। ओके तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, नेगेटिव पोर्शन ये हम लोग को यूज करना है, ये क्लियर? यस सर। और फाइनली एक्स का जो आंसर गिवन है आपको दैट इज 1 2 1 2 3 क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब ये 1 और 3 यहाँ पे आ रहे होंगे इधर कहीं पे, क्योंकि 1 2 3 तो पूरा फिल हो गया ना फिर अभी। यानी दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन having two roots where one root is less than 1 and other root is लेस देन 1 greater than 3. greater than 3। हाँ तो ये कंडीशन से आगे आने वाला है, और इसके लिए कंडीशन क्या होता है? f of 1 and f of 3 both should be Less than 0. f of 1 भी नेगेटिव, f of 3 is also नेगेटिव। इसके अलावा कंडीशन होता है क्या? नो सर। 1 3 दोनों नेगेटिव है, यानी ग्राफ विल पासेस these through these points
ग्राफ ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी कुछ पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है, ग्राफ बनेगा दिस. सो आपको चेक करना है जस्ट दिस, f of 1 less than 0 and f of 3 is also लेस देन 0 एंड देन इनका इंटरसेक्शन. तो x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं. अच्छा, दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, देन दिस विल बी लाइक दिस 3a minus 1, या फिर नॉर्मल लिखते हैं इसको ना. तो ये है 1 minus 3a into 1 minus a minus 3 less than 0. This is 1 minus 3a and this is minus a minus 2 less than 0. Critical points minus 2 and 1/3 sign convention minus plus plus minus plus plus minus plus, क्योंकि both a's are negative portion. f of 3 x is equal to put करोगे 3, so this is 3 minus 3a and on this side 3 minus a minus 3, 3 cancel यानी कि minus a. This also should be less than 0. Critical points 0 0 और 1. साइन कन्वेंशन दोनों ये है नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस नेगेटिव पोर्शन, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो? 0 to 1/3 1/3. दिस आंसर होना चाहिए 0 to 1/3. ऑप्शन बी, ये इसका आंसर. ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी एक बार ये क्लियर होगा कि ये है क्वेश्चन का मीनिंग तो फिर ये सही. इसमें डाउट है क्वेश्चन नंबर 59 में? फिर से एक्सप्लेन करते हैं, फिर से डिस्कस करते हैं. Then question number 60. If alpha and beta are the roots of the equation this, then the roots of the equation this will be. ये सब आपको एक्सप्लेन किया था यार, है ना? सब एक्सप्लेन किया था. ये क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा? वो a times 2x plus 1 whole square plus the b times 2x plus 1 into x minus 1 and plus c times x minus 1 whole square is equal to 0. Find out roots of this equation in terms of alpha and beta. सर x minus 1 whole square से सबको Divide. डिवाइड करेंगे. So this is this plus b times 2x plus 1 upon x minus 1 plus का c is equal to 0. तो यही बोला था यार पहले, आपका इसका जो स्ट्रक्चर है और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनको ऑलमोस्ट सेम करते हो. तो ये भी प्लस सी, ये भी प्लस सी. नाउ पुट सम एक्सप्रेशन एस टी सो दैट दिस इक्वेशन, ये जो गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके जैसा दिखना चाहिए. नाउ पुट दिस टी. कई बार ये 1 माइनस एक्स होता है. ओके, तो ये सपोज करो आप पुट करते हो टी, देन ऑल्सो दिस इज टी स्क्वायर. ठीक है, मतलब यही बता रहा था ना. तो ये हो गया अभी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन ऑल्सो हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, लेकिन यहाँ पे भी है किसका? टी. एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. इजीली इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस. ठीक है, 61 ट्राई करो. एक सेकेंड. Okay, now question number 61. Px square minus qx plus r is equal to 0. This equation having root alpha and beta. Now we have to determine an equation of which roots are this and this. Alpha square plus r upon p and beta square plus R upon. again r upon p. Okay, ये क्वेश्चन. ठीक है, तो यार ये भी ऐसा टफ क्वेश्चन है क्या बोलो? नहीं. no sir. r upon p is basically Alpha beta अल्फा बीटा. तो वन रूट है दिस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, सेकेंड रूट है दिस बीटा स्क्वायर प्लस
अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। अब ये सिमेट्रिक रूट्स भी हैं होने को, तो ये भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से अल्फा कॉमन एंड दिस इज अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से बीटा कॉमन, दिस इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी फिक्स है, दैट इज क्यू बाई पी। सो बेसिकली वन रूट इज दिस एंड अदर रूट इज दिस। ये बताया था, काफी सिंपल है। इसको आप पुट करते हो क्या, y alpha is equal to py upon q. Alpha will satisfy this equation. Satisfy करो, simplify करो, और finally y के प्लेस पे क्या पुट कर दो, X. x। या तुम लोगों को नहीं लगता मतलब काफी ऐसे इजी लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करते हैं हम लोग सारी चीजों को? मतलब ऐसा बहुत टफ लैंग्वेज नहीं होता है कि यार ये लर्न कर लो, वो लर्न कर लो, सब लर्न कर लो, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ सर। तो अल्फा है पी वाई अपॉन क्यू, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और बाद में सिंप्लीफाई वगैरह करने के बाद y को वापस x कर दो, क्योंकि जनरली इक्वेशंस x में होती हैं, t में होते तो t रख देते हैं, y में होता तो k है, y में ही। अभी स्टार्टिंग में x क्यों नहीं रखते, क्योंकि स्टार्टिंग में आप x भी होता है, कंफ्यूजन होता है, तो में नहीं होता है तो रख दो, कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, वन रूट है दिस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, सेकंड रूट है दिस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, क्वाड्रेटिक का स्ट्रक्चर पता होता है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एंड देन मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन भी ऐसा कुछ टफ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन कितना रहा है इसका, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ऑलरेडी पता, अल्फा प्लस बीटा इज ऑलरेडी नोन टू अस, वैल्यू रख के आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ये क्वेश्चन क्लास में करवाया था, वही क्वेश्चन 62 हैविंग रूट्स सॉरी क्यूबिक है दिस x क्यूब माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट से अल्फा बीटा गामा। फाइनली आपको डिसाइड करना है वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये है पाई, 22/7 नहीं होता है, ये मल्टीप्लिकेशन को शो करना है। सो बेसिकली दिस 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। हु कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? Question number 62. X cube minus x minus 1 is equal to x minus alpha, x minus beta, x minus gamma. Then X. पहले x is equal to 1 करेंगे तो 1 plus alpha, 1 plus beta, 1 minus alpha, 1 minus हाँ beta. बेस्ट है यार, वही है, बेस्ट है, वो कर लो, बेस्ट है। तो बेसिकली ये फैक्टर्स हो गए। तो x क्यूब माइनस x माइनस 1, एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिटर्न as in terms of its roots using Multiply. हाँ for 1 plus alpha 1 plus beta 1 plus gamma प्लस है, नेगेटिव पुट करते हो, पुट x is equal to -1. -1, दिस इज -1 +1 और +1 यानी कि 1, -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा -1 माइनस गामा, माइनस 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 कॉमन 3 माइनस यानी कि नेगेटिव, और रिमेनिंग एक्सप्रेशन है दिस 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा। अभी x इज इक्वल टू पुट करोगे 1, सो 1 माइनस 1 यानी कि -1, एंड दिस एक्सप्रेशन इज दिस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा एंड 1 माइनस गामा, और फिर इन दोनों को डिवाइड, एवरीथिंग इज ऑलरेडी कैंसिल्ड आउट, माइनस भी कैंसिल, फाइनल आंसर है जस्ट -1। तो ये 1 आना चाहिए यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ 1। 1 आना चाहिए इसमें से। नहीं, एक्चुअल में ये -1 आएगा यहाँ पे। हाँ तो ये माइनस कैंसिल, फाइनल आंसर इज -1. -1 ऑप्शन डी। अच्छा सूर्यवंशी तुम बताओ, इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता, लेट्स से दिस, अभी अभी सर इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन है दिस 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा एंड 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, इन तीनों का समेशन। एलसीएम वगैरह लेके फिर काफी लेंथी हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी डन फॉर दिस एक्सप्रेशन? सर इक्वेशन निकालेंगे जिनके रूट्स। बेसिकली आप एक इक्वेशन क्रिएट करोगे अपने आप से,
of which roots are One this, plus alpha, this and this. And for that, put 1 plus alpha upon 1 minus alpha is equal to y. फिर वो क्रॉस x, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कंपोनेंट डिविडेंडो यूज कर सकते हो, और डायरेक्ट लर्न है तो वो यूज कर सकते हो, मतलब कुछ भी यूज कर सकते हो. आपको अल्फा फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y, y. अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. वापस से पुट करो, सेटिस्फाई करेगा वो. सिंप्लीफाई करो, फाइनली एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस, a y cube plus b y square plus something y or some constant is equal to 0, and answer for this expression will be minus b upon a. coefficient of y square upon coefficient of y cube. हो गया. yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. g of x गिवन है वेयर b इज अ पैरामीटर. पैरामीटर का मतलब, पैरामीटर का तो पैरामीटर ही होता है, मतलब है ना, मतलब कोई भी Yes. नंबर है. इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन gx is equal to 0 आर ग्रेटर देन -1, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन. कंडीशंस लगा. फर्स्ट कंडीशन d greater than equal to 0, सेकंड कंडीशन वर्टेक्स -1 के राइट साइड में, थर्ड कंडीशन f Minus of b. -1 should be. Positive. Greater than 0. Positive. Now question number 64. If roots of the equation this are each one more than the roots of the equation this, then where a b c d p q constants है, then the value of a plus b plus c is equal to. ये क्वेश्चन शीट में है एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में, yes सॉरी sir. पार्ट 2 में है, एक्चुअल में पार्ट 2 या पार्ट 1 में से एक में है ना जो, तो वहां पे है ये क्वेश्चन. x cube plus px square plus qx minus 19 is equal to 0 if roots of the equation are each one more than the roots of the equation this. x cube minus cx square plus bx minus c is equal to 0. This root alpha beta gamma, then roots of this equation will be alpha plus 1, Beta plus 1, gamma plus 1. gamma plus 1. फाइनली डिसाइड करना है आपको a plus b और plus c, यानी ये डिसाइड करना है a plus b plus c. ठीक है, ऑप्शंस हैं 15, 18, 14, 21. क्या करना चाहिए? The second expression से सेकंड एक्सप्रेशन से क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा a, ठीक है, फिर 2 के मल्टीप्लिकेशन b और ठीक है. 3 के मल्टीप्लिकेशन ओके, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज माइनस यानी कि प्लस ए, 2 पेयर्स अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, दिस विल बी माइनस प्लस यानी कि p, एंड पेयर ऑफ 3 नंबर्स, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू c. ओके, नेक्स्ट बोलो. फिर अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 इंटू सॉरी वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन 19. हाँ, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 90. अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1, दिस विल बी 90. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. इसको वो- सिंप्लीफाई करोगे बेसिकली. a प्लस b प्लस c प्लस आएगा. हाँ, ये सब प्रोवाइड करेगा, Value. सब प्रोवाइड करेगा. ये डायरेक्ट लर्न होना तो भी बेस्ट रहता है. ये आपको बताया था बेसिक्स में कि ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअल में. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 2 पेयर्स अल्फा गामा बीटा गामा प्लस तीनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा गामा प्लस 1, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ये सब एक्चुअल में दिस ही है. अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1. गामा प्लस 1. तो ये वैल्यू है दिस a, दिस वैल्यू इज दिस b, this value is this c, plus 1 is equal to 19, and the final answer is 18. 18. सिंपल है. अब ऐसा नहीं कि ये कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं और सब सिंपल क्वेश्चन. मतलब कहने का ये था कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं लेकिन सिंपल ही हैं सारे. ठीक है, जैसे एक बच्चा बोल रहा था सर आप सारे क्वेश्चंस को इजी बोलते हो तो अच्छे क्वेश्चंस कब करेंगे हम लोग? ये सब अच्छे क्वेश्चंस ही हैं लेकिन इजी क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 65. Find the value of the y quadratic expression this when x is equal to 2 plus root 3. काफी सारे एक्सप्रेशन जीरो के मल्टीप्लाई में लाने का ट्राई करोगे, एंड फॉर दैट वो जीरो वाला एक्सप्रेशन अपने आप से क्रिएट करना होता है. सो यहाँ पे गिवन है x is equal to 2 plus root 3, यानी x minus 2 is equal to रूट 3. root 3 स्क्वायर करो, एक्सप्रेशन आएगा, डिवाइड करो, एंड फाइनली जो रिमाइंडर है ना दैट विल बी द आंसर. तो यहाँ पे आंसर गिवन है 1, मतलब डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 ही आ रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66.
two roots of y quadratic this have their product equals to minus 32. Find out the value of k. Same to same question class notes में है. Yes, sir. ये कौन एक्सप्लेन करने वाला है वो? x A to the plus power addition minus उसकी 18. एक सेकेंड. Multiplication. This is equal to 0. Total 4 roots Alpha, beta, gamma, theta. और इनमें से 2 का मल्टीप्लीकेशन है -32. And finally we have to find out the value of k. ये क्वेश्चन. Alpha, beta. सो कौन एक्सप्लेन करने वाला है? Yes, sir. शिवप्रसाद तुम रहने दो भैया, सारे क्वेश्चन तुम ही करो, कुछ और से. स्वप्निल तुम एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन नंबर दिस 66 दिस क्वेश्चन. अल्फा बीटा -32, सो गामा डेल्टा 19 62. upon 32. हाँ 62. 63 आता है क्या? 62. 62. ठीक है. This expression can be written as this: x minus alpha into x minus beta into x minus gamma into x minus Delta. Delta. multiplication x square minus alpha plus beta x. Alpha plus beta को एक सेकंड के लिए बोल देता हूँ मैं स्मॉल है. Alpha beta already given -32. This multiplication x square minus gamma plus delta को एक सेकंड के लिए बोल देते हैं स्मॉल b. So x square minus bx gamma delta is 62. अभी इन दोनों का multiplication will be this. कंपेयर करते हैं. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ कितना आ रहा है? माइनस बी और माइनस A. लेफ्ट साइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 18. 18. तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 18. 18. अभी दिस रिलेट होता है विद 1 पेयर 2 पेयर और 3 3. नहीं, अभी 3 पेयर नहीं यूज कर रहे हैं. ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ रहा है? बोलो. -62a और -32, सॉरी -62a और +32b. एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1. 200. सो दिस इक्वल्स टू 200. बस इसको सॉल्व करो, फाइंड करो a एंड b. और ये है k विच इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी 62 प्लस ab और माइनस 32. तो इजीली इसका आंसर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 डिस्कस करना है. बोलो. -32. 67 ये समरजीत ने पूछा था टेस्ट के पहले, डिस्कस कर रहे थे हम लोग. ठीक है. x to the power 4 plus x square plus 1, this equals to x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1. x square plus x plus 1 कॉमन कैंसिल. रिमेनिंग पोर्शन है दिस a minus 1 x square minus x plus 1 plus a plus 1 into x square plus x plus 1 is equal to 0. And this equation having two roots real and Distinct. यानी d should be Greater. ग्रेटर देन 0. उसके पहले इसको डेकोरेट करोगे. डेकोरेट करने का मीनिंग x स्क्वायर सेपरेट, x सेपरेट, रिमेनिंग टर्म्स भी सेपरेट. ओके. क्वेश्चन नंबर 68. कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस c is not equal to 5. वो क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं अदरवाइज. Let S be the set of all integers values of c for which one root of the equation lies in the interval 0 to 2 and other root lies in the interval 2 to 3. Let's say coefficient of x square है positive. दोनों केसेस लेने पड़ेंगे हम लोग को. So graph will be like this. And इस ग्राफ के लिए conditions f of 0, f of 2 Negative. and f of 3 Positive. इतने कंडीशन सफिशिएंट है. डी वगैरह का कंडीशन अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ग्राफ कट करता है तो डी 100% पॉजिटिव ही आएगा. ओके.
ये सॉल्व करना है क्या बोलो? 68 c minus 5x square minus 2cx plus c minus 4 is equal to 0. Case 1, c greater than 5. 0, 2 and 3 graph will be like this. F of 0 Positive. positive, f of 0 यानी c minus 4 positive यानी c greater than 4. second f of 2 x is equal to 2. So x is equal to 2 यानी कि 4. 4c minus 20 minus 4c plus c minus 4. 4c cancel और remaining है अभी c minus less than 0 यानी c less than. 24. Third condition is f of 3 should be Positive. positive. X is equal to 3. 9c minus 45 minus 6 times c plus c minus 4. So this is 9c minus 3c plus c यानी कि 4c minus 49 greater than 0 यानी c greater than 49 upon 4. 4. अभी इन सबका intersection. Okay, so final intersection is c belongs to 49 upon 4 is almost 12 point something. So according to this, c greater than 4. According to this, c greater than 5. According to this, c greater than 12 point something. According to this, c less than 24. So final intersection will be 12 point something to 24. Second case, c less than 5. c less than 5 तो ये है negative. Graph will be like this. First condition, f of 0, Negative. f of 2 positive and f of 3 negative. फिर से कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेट किया है हम लोगों ने यहाँ पे. Just sign change. c less than 4. According to this, c greater than 24, and according to this, c Less than 12. Less than 49. less than 12 point something. Intersection कुछ possible है क्या बोल? नहीं. No intersection. So c belongs to 12 point something to 24, and the question is the set of all integral values of c, then the number of elements in s. So basically ये कैलकुलेट करना है कि इस इंटरवल में टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ रहे हैं. So total number of integers are 11. 13 to 24. 8 plus 3. कितना आंसर आना चाहिए? 11. 24 तो यूज नहीं करोगे ना, इसलिए. शिव के साथ क्या डाउट है बोलो? सर 68. ये 68 ही है. सर स्टार्टिंग से डिस्कनेक्ट. अरे कुछ भी नहीं है यार, ये इक्वेशन है और इसमें कंडीशन ये कि वन रूट लाई करता है इन द इंटरवल 0 to 2, अदर रूट लाई इन द इंटरवल 2 to 3. सो ग्राफ विल बी लाइक दिस और दिस. इसके अकॉर्डिंग कंडीशंस क्या दिख रहे हैं? f of 0 पॉजिटिव, f of 2 नेगेटिव, f of 3 भी पॉजिटिव. इसके अकॉर्डिंग कंडीशंस f of 0 नेगेटिव, f of 2 पॉजिटिव, f of 3 नेगेटिव. ये वैलिड है व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव यानी c ग्रेटर देन 5. दिस इज वैलिड व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव यानी c लेस देन 5. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन सब का इंटरसेक्शन डिफरेंट केसेस का यूनियन. लेकिन इस केस में कोई आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि वो इंटरसेक्शन ही नहीं बन रहा. लेस देन 4 ग्रेटर देन 25 24 इनका इंटरसेक्शन नहीं आएगा कुछ भी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 69. ये भी काफी इजी क्वेश्चन है. अल्फा टू द पावर 0 प्लस अल्फा टू द पावर 1 अल्फा टू द पावर 2 अल्फा टू द पावर इंफिनिटी यानी इंफिनिटी टर्म्स. क्लियरली दिस इज इनफिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इसका समेशन क्या होता है? A upon 1 minus R. A upon this. Similarly this. LCM वगैरह लो, न्यूमरेटर को सॉल्व करो, हो गया क्वेश्चन. Now question number 70.
If alpha and beta are the roots of the equation this, gamma delta are the roots of the equation this, then the value of this expression. Purva, this question explain karo 70. Sir, x square plus px plus q can is equal to x minus alpha, x minus beta. Just a second. X square plus px plus q is equal to leading coefficient which is 1. 1. तो leading coefficient का थोड़ा ध्यान रखना. Suppose करो यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे भी 2. Yes, sir. अभी तो नहीं है. So x minus alpha into x minus beta. Next. Sir, similarly, second equation भी वैसे ही. Similarly, second equation भी same. इसके roots है gamma and delta. This polynomial again can be written as in terms of its roots x minus gamma into x minus delta. Next बोलो. So second equation में x is equal to alpha. हाँ वो दिख रहा है यहाँ पे expression है this minus gamma minus delta alpha alpha तो just x is equal to alpha. And for beta minus gamma into beta minus delta what x is equal to Beta. beta और फिर इन दोनों का multiplication. So x is equal to alpha यानी alpha square plus r alpha plus s and x is equal to beta beta square plus r beta plus S. s इन दोनों का multiplication. Next बोलो. अभी इनका मल्टीप्लिकेशन ही करना है बस ये कि अल्फा और बीटा एलिमिनेट करना है आपको. Yes, sir. ठीक है. सो अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस पी अल्फा माइनस Q. क्यू. ये यहाँ पे पुट तो ये हो गया अभी आर माइनस पी अल्फा प्लस एस माइनस क्यू. सिमिलरली दिस एक्सप्रेशन r minus p beta plus s minus Q. q. ये करोगे अभी मल्टीप्लाई. ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार आपको पूरा है ना. दिस विल बी लाइक r minus p अल्फा बीटा फिर दिस मल्टीप्लाई लास्ट में दिस मल्टीप्लाई तो है वहां पे s minus q होल स्क्वायर. अल्फा बीटा इज cy यानी कि q अपॉन 1. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में कोई डाउट है? Yes, sir. कौस्तुभ तुम एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर 71. मुझे नहीं याद. Again both equations having one root common. Let's say alpha. यार सेम मेथड है. Let's say alpha सब्स्टिट्यूट करो कुछ एलिमिनेशन वगैरह करो वापस से सब्स्टिट्यूट करो फिर वैल्यू फाइंड करो. देखते हैं. तो अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड अल्फा टू द पावर 4 प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस 1 is equal to 0. Now we should eliminate alpha to the power 4. So this multiply with Alpha. सर सेकेंड एक्सप्रेशन में अल्फा कॉमन लेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस ए आएगा ए अल्फा. ठीक है. फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन से हमको मिलता है कि अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा इक्वल टू -1. यार कुछ भी कर सकते हो आप. एलिमिनेशन ही तो कर रहे हो ना. काफी सारे मेथड्स है एलिमिनेशन. मतलब एलिमिनेशन यूज कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो. अभी तुम जो बोल रहे हो वो भी यूज कर सकते हो. तुम्हें क्लिक हो गया अच्छी बात है. यहाँ से x कॉमन रिमेनिंग है x क्यूब प्लस ax एंड x क्यूब प्लस ax विल बी -1. यही बोल रहे हो ना तुम? यस सर. तो ये वही आने वाला है. -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1. वही सेम यहाँ पे आएगा. इसको मैं माइनस ही कर रहा हूँ. दिस कैंसिल दिस इज आल्सो कैंसिल. अल्फा -1 इज इक्वल टू 0. अल्फा इज इक्वल टू 1. मतलब जो कॉमन रूट है ना वो ये है. यहाँ पे पुट करो 1 प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू -2. तो सेम मतलब यही होता है कॉमन रूट से केस में. या तो सारे रूट कॉमन है फिर तो कोफिशिएंट का रेशियो सेम. कुछ रूट्स कॉमन है कंसीडर करो पुट करो एलिमिनेट करो वापस से सब्स्टिट्यूट करो. बस इतना होता है. 72 इफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 1 हैविंग. ये कौन एक्सप्लेन करेगा? 72. यस सर.
हाँ बोलो। सर x+3 को हम -1+4 लिखेंगे। हाँ यार, ये ब्रेक करना आना चाहिए, कंप्लीटली सर्च का क्वेश्चन है। सेकंड एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस एंड दिस इज लाइक 2ab, दिस स्क्वायर x minus 1, this is square, a square plus b square is x plus 3. So basically this is complete square of square root of x minus 1 minus -2 2 अंडर रूट b है, रैंडम अपन नहीं करते हैं, मॉड अप्लाई करते हैं, मॉडल प्लस सेकंड वन विल बी द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x -1 -3 -3, okay, is equal to 1. 1. This equation having no solution, one solution, इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बोलो। एक बार ये मॉड ओपन कर, हाँ बोलो। मॉड ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगा, दोनों प्लस फिर माइनस ऐसे रैंडम ओपन नहीं करते हैं, मॉड ओपन करने के लिए तुम पहले तो केसेस ही बनाओगे। सपोज करो दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, and this will be positive when square root of x minus 1 should be greater than 0 2. हाँ 2 ये पॉजिटिव when this greater than 3. तो मैं अभी इसको लेके चल रहा हूँ greater than 3, मतलब दोनों ही पॉजिटिव, दोनों as it is open, यानी 2 times square root of x minus 1 minus 5 is equal to 1, minus 5 राइट साइड में प्लस 1 प्लस 5 6, 3 times cancel, यानी square root of x minus 1 is equal to 3, x is equal to case must be followed. केस ये फॉलो हो रहा है क्या? Yes. तो ये ओके सॉल्यूशन है। सेकंड लेट्स से दिस, देखो ये बेसिकली बेटा 2 और 3 यहाँ पे है ना, तो एक बार स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 को यहाँ पे कंसीडर किया तो ये दोनों पॉजिटिव, एक बार मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3. इन सेकंड केस square root of x minus 1 is less than 3 and greater than 2, greater than 2, this value पॉजिटिव, as it is open, this value नेगेटिव, open with negative sign, open with negative sign, plus 3 minus this and this, 1 is equal to 1. यानी square root of x minus 1 will lie between 2 to 3 any value, मतलब 2 और 3 के बीच में कोई भी सॉल्यूशन आता है, क्योंकि 1 is equal to 1 ये ऑलवेज है। स्क्वायर करते हैं क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव, x minus 1 4 and 9, 1 add 10 और 5, इसके अलावा ये भी डिफाइन अनसाइड पोर्शन, तो x minus 1 तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी x belongs to 5 to 10. अब मैं ये चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रल वैल्यूज है या फिर ऑल वैल्यूज है। सो दिस इंटीग्रल जैसा कुछ है क्या कहीं पे यहाँ पे? नहीं। तो फिर कितने सॉल्यूशंस हो गए? 4 solutions. इनफाइनाइट सॉल्यूशन बेटा, 5 to 10 के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, हाँ, 5.1 yes, 5.2 Yes sir. तो इसका आंसर है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इंटीग्रल वैल्यूज लिखा होता तो एक इंटीजर तो ये रहा x is equal to 10, यहाँ पे इंटीजर्स आएंगे 6 7 8 9, और फिर केस 3 बनाएंगे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ x minus 1 less than 2, वहां पर ये दोनों ओपन विद नेगेटिव साइन, वो भी फिर चेक करोगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस 73 कौन एक्सप्लेन करेगा वो? 73 Yes sir. हाँ बोलो। सर वो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव है ऑलवेज। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, a पॉजिटिव d नेगेटिव, सो क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड विदाउट एनी प्रॉब्लम।
विदाउट एनी प्रॉब्लम का मतलब विदाउट एनी साइन चेंज. ओके, so this is mx square plus 3x plus 4 less than 5x square plus 10x plus 10. और इसको लेफ्ट साइड, तो ये हो गया m minus 5x square minus का 7x minus 6 less than 0. यानी this expression always 0 for every value of x belongs to R A will be less than possible 0, a negative and D is also negative. Negative. यानी m minus 5 नेगेटिव, इसका d चेक करना b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज आल्सो नेगेटिव, और फिर इन दोनों का Intersection. Intersection. इंटरसेक्शन 74. देखो यार मैथ्स में इसमें अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको तुम आंसर वैल्यू पुट करके फाइंड करोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, नहीं होता है ऐसा. ठीक है, इवन सीईटी में भी ऐसा नहीं होता कि वैल्यू पुट करके आंसर आएगा तुम्हारा, कभी नहीं होगा. इसके अंदर भी सॉल्यूशंस पूछे होते तो वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, ऐसे थोड़ी है कि नंबर के लिए 1 2 3 पुट कर दोगे यहाँ पे. ठीक है, तो मैथ्स के लिए एटलीस्ट आपको 1 hour 15 मिनट्स तो रखना ही पड़ता है, 1 hour 15 मिनट्स, और वो टाइम सेव करते हो आप केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री इजी इन द सेंस काफी सारी चीजें उसमें नॉलेज बेस्ड ही होती हैं, पता है तो ओके, नहीं पता है तो फिर नहीं कर सकते. मैथ्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने पड़ते हैं. 74 में कोई डाउट? ये कौन एक्सप्लेन करेगा, बोलो 74. Anyone who can explain question number 74? Yes, sir. Siddhi, can you explain question number 74? राजन, तुम एक्सप्लेन करोगे 74? सर नहीं है मुझे वो. शिव प्रसाद के अलावा आप एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन नंबर 74? हाँ शिव बोलो. सर पहले सेपरेट करेंगे m plus n को 4x into 4 power 1.5. 4 to the power x into 4 to the power 1.5. 1.5 का मतलब हो गया 3/2, वैल्यू आएगा 8. नेक्स्ट बोलो. फिर 9 3 is equals to 10 और 6 को भी 2 power x into 3 power x. 2 to the power x into 3 to the power. नेक्स्ट बोलो. 4 को 2 power 2x. एंड बाद में 2 to the power x को a एंड 3 to the power x को b. सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास में करवाया, तो सेम टू सेम तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा ही कुछ था. सो दिस इज 8a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ab. एंड दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन, क्योंकि टोटल डिग्री हर टर्म में सेम ही है. ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड. सो नाउ दिस इज 8a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. होमोजेनियस इक्वेशन है, इसमें टोटल डिग्री 2, यहाँ पे भी टोटल डिग्री 2, यहाँ पे भी टोटल डिग्री 2. जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशंस होता है ना, वो होमोजेनियस होते हैं क्योंकि हर टर्म में टोटल डिग्री सेम ही होता है. इनका स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो. लाइक यहाँ पे 8a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 6ab, कॉमन 4a, रिमेनिंग है 2a माइनस b. यहाँ पे भी 2a माइनस b कॉमन इज माइनस 3a इज इक्वल टू 0. So either 4a is equal to कितना था, 3b, 3a. This is 3b. So either 4a is equal to 3b or 2a is equal to b. b. A is 2 to the power x, b is 3 to the power x. A is 2 to the power x, b is 3 to the power x. So this is 3 upon 2 whole power x is equal to 4 upon 3. This is 3 upon 2 whole power x is equal to 2. One solution यहाँ से, second solution यहाँ से, दोनों डायरेक्ट नहीं आएंगे, लॉग के फॉर्म में आंसर्स आएंगे. Yes. तो फाइनल आंसर इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2. अभी तक इस पूरे पेपर में मेरे को बस एक ही क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, और वो क्वेश्चन है दिस. फाइंड आउट द इक्वेशन जिसके रूट्स हैं sec स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा. केवल ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है,
बाकी सारे इजी क्वेश्चंस हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई माइंडिंग लगाना पड़ रहा है हम लोगों को। एक वो क्वेश्चन अच्छा था जहां पे उसका वैल्यू आप लेस देन 3 यूज ही नहीं कर सकते, तो लेस देन 4 यूज नहीं कर सकते। 75 एक ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन लगता है क्योंकि इसमें डिग्री रिड्यूस करते हो, बाकी ये भी इजी क्वेश्चन है। अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो सेटिस्फाई। एंड फाइनली फाइंड करना है वैल्यू ऑफ दिस अल्फा टू द पावर 6 प्लस 2 टाइम्स अल्फा टू द पावर 4 होल पावर 2012। ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? power 4 common अल्फा टू द पावर 4 Second कॉमन, expressions. देन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 2। नेक्स्ट अल्फा पावर 4 की वैल्यू फर्स्ट एक्सप्रेशन से इसमें डालें। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर यस सर, इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों। minus alpha to the power 4, this is 1 alpha square, this is minus 2 alpha, 1 alpha square minus 2 alpha square, यानी minus alpha square plus 2। यस next सर, फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 है, हाँ। फिर minus alpha 4 minus alpha square is equal to -1 minus 1 plus 2 is equal to 1 और 1 to the power any number is equal to 1। ऑप्शन सी हो गया। तो ये बताया था डिग्री रिड्यूस हो जाती है यहाँ पे स्टार्टिंग ओरिजिनल इक्वेशन को यूज करके। बस यार हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, और कोई डाउट है बोलो? ओके चलो, बाकी और भी कोई डाउट्स है तो सेंटर पे अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 4 पे आना वहां पे, तो मैं हूँ वहीं पे, है ना? ठीक है, और थोड़ा पढ़ो यार, है ना? ऐसे टफ नहीं होता है, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो चीजें हो जाती हैं। ओके चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाकी कोई डाउट्स वगैरह है तो बताना, डिस्कस करते हैं। ओके